Hello everyone. So in the previous class we started with the topic respiration, and there we discussed what are the steps involved in respiration, and we also talked about the types of respiration, that is aerobic and anaerobic respiration. Today's class we will be talking about the steps, the first step of respiration, that is the external respiration or breathing. So moving forward with today's class. So talking about today's topic, that is the external respiration that which means breathing. We will be talking about breathing. So what is breathing? I guess everybody knows breathing means taking in oxygen, O2, and releasing CO2. Now, breathing is a process in which we take in CO2 and release, take in O2 and we release CO2. That means there will be two steps involved in breathing. One is taking in O2, and this process is called as inhalation. What is inhalation? Means in means to take in. So taking O2 inside the body, that process will be called as inhalation. And the other one in breathing, the first part is taking in O2 and the other part is releasing CO2. So taking in O2 is called as inhalation. Then what will this releasing of CO2 will be called as? That will be called as exhalation. Exhalation. X means to remove. Okay. So releasing of CO2 is called as exhalation. Now for both these process, that means for the process of inhalation or exhalation, or in general term if we'll talk about for the process of breathing, we need uh, something that is going to support the process of breathing. What is that something? There are two things which are required for the process of breathing. Okay, so two organs or two organs required to carry the required to carry the process of, just a second, hold. Organs require to carry the process of breathing, the process of breathing. Now, so what are the two organs? The first one is called as diaphragm. What is now? This is what is diaphragm. Diaphragm. Okay, diaphragm is a dome shape. You know what is dome shape? Means curve shape. This is the structure. Dome shaped tissue. Okay, it is a muscle, not a tissue. Muscular tissue. It is a dome shaped muscle present below your chest cavity, just present below the chest cavity. ठीक है, in the abdominal cavity में आपके ये suppose आपका ये हो गया, ठीक है, if this is the your and this is your windpipe and the trachea or the windpipe, or these are the bronchioles, and यहाँ से आपका ribs बन रहा है, ये ribs बन रहा है, ये सारा ribs बन रहा है. तो ribs के नीचे जो तुम्हारा ये बन रहा है, यहाँ पे एक डोम शेप स्ट्रक्चर होगा, मस्कुलर शीट होगी. दिस मस्कुलर शीट इज कॉल्ड एज डायफ्राम. ठीक है, तो एक तो डायफ्राम की जरूरत पड़ेगी ब्रीदिंग के लिए. दूसरा क्या जरूरत पड़ेगा आपको? द सेकेंड स्ट्रक्चर
or the second organ which is required are the ribs. These two things will work together. These two, just a second. The ribs and the diaphragm, they will work together to help to support the process of breathing. Actually what they will be making, the ribs and the diaphragm together will make a cavity which is called as chest cavity. क्या बनेगा? Chest cavity. जैसे मैंने ये बताया, यहाँ पे देखो ये आपके रिब्स हो गए, ये साइड वाला रिब्स हो गया, ये भी साइड वाला रिब्स हो गया, ये क्या हो गया आपका ये भी रिब्स हो गया, और नीचे क्या हो गया, ये तुम्हारा डायफ्राम. तो ये मिलके ये इन चारों को अगर हम ये को देखा जाए तो क्या बन गया, एक कैविटी बनी, दैट कैविटी इज कॉल्ड एज चेस्ट कैविटी. ठीक है. तो अब कैसे इनहेलेशन और एक्सहेलेशन होगा, देखो एक्चुअली ट्राई टू अंडरस्टैंड. सपोज ये यहाँ हियर आई एम ड्रॉइंग अ बॉक्स, दिस इज अ बॉक्स. ठीक है. दिस इज जस्ट अ सेकेंड. दिस इज अ बॉक्स. ठीक है. नाउ दिस इज ribs, दिस इज ऑल्सो ribs, ये भी क्या है, रिब्स है, और ये क्या है, डायफ्राम है. और ये जो कैविटी बनी है इसको क्या हम लोग बोलेंगे, चेस्ट कैविटी. क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड एज चेस्ट कैविटी. नाउ अब इस चेस्ट कैविटी को एक बॉक्स की तरह अज्यूम कर लेते हैं. ठीक है. अब हमको इनहेलेशन करना है. इनहेलेशन करना है मतलब बाहर से एयर को अंदर लाना है, एयर यानी ऑक्सीजन को अंदर लाना है. तो किसी भी चीज को देखो, इस कैविटी के अंदर में अपना कुछ ना कुछ तो एयर होगा. ठीक है. तो ये कैविटी भरी हुई है किससे, एयर, ऑक्सीजन से भरी हुई है, एयर से भरी हुई है. ठीक है. अब इसमें एक्स्ट्रा एयर हमें बाहर से अंदर लाना है. तो इस एक्स्ट्रा एयर को लाने के लिए हमें किसकी जरूरत, क्या करना पड़ेगा, हमको इस बॉक्स को, ये कैविटी को, बॉक्स यानी कैविटी के साइज को बड़ा करना पड़ेगा. यस और नो, साइज को हमें बड़ा करना पड़ेगा. जस्ट अ सेकेंड. हाँ, तो ये चेस्ट कैविटी के साइज को हमको बड़ा करना पड़ेगा. तो आप कैसे बड़ा कर सकते हैं, आप तुम खुद देखो. अब हमको ये चेस्ट कैविटी को बड़ा करना है, तो ये डायफ्राम नीचे, तो डायफ्राम को हमको क्या करना पड़ेगा, डायफ्राम ऊपर जाएगा कि डायफ्राम नीचे जाएगा, डायफ्राम नीचे जाएगा. तो इनहेलेशन के प्रोसेस में क्या हो रहा है, डायफ्राम विल मूव डाउनवर्ड, डायफ्राम विल मूव डाउनवर्ड. कहाँ जाएगा, डायफ्राम विल मूव डाउनवर्ड. ठीक है. समझ में आ गई बात. अब रिब्स को देखो. अब ये चेस्ट कैविटी थी, अब चेस्ट कैविटी की साइज को बड़ा करना है. तो इस साइड, इन दोनों साइड में रिब्स क्या होगा, बाहर की तरफ जाएगा कि अंदर की तरफ आएगा, क्योंकि हमको चेस्ट कैविटी को बड़ा करना है. तो रिब्स क्या जाएगा, रिब्स कहाँ होगा, दे विल मूव आउटवर्ड, रिब्स विल मूव आउटवर्ड, रिब्स विल मूव आउटवर्ड. क्लियर हो गया. आप ऊपर वाला रिब्स को देखो. अब हमको चेस्ट कैविटी को बड़ा करना है, तो रिब्स ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, ऑब्वियसली रिब्स ऊपर जाएगा. तो रिब्स विल मूव आउटवर्ड एंड अपवर्ड. इससे क्या हो गया, देखो, डायफ्राम डाउनवर्ड गया, रिब्स आउटवर्ड एंड अपवर्ड गया. तो इससे क्या हो गया, चेस्ट कैविटी की साइज इंक्रीज हो गई. चेस्ट कैविटी का साइज क्या हुआ, जस्ट अ सेकेंड. हाँ, चेस्ट कैविटी का साइज क्या हो गया, इंक्रीज. एरो मैंने ऊपर कर दिया, चेस्ट कैविटी का साइज इंक्रीज हो गया. तो इंक्रीज होने की वजह से क्या हो गया, यहाँ पे एम्प्टी स्पेस क्रिएट हो गई, एम्प्टी स्पेस क्रिएट हो गया. एम्प्टी स्पेस क्रिएट होने की वजह से एयर फ्रॉम आउटसाइड, एयर यानी O2 फ्रॉम आउटसाइड will enter, and this process is called as what, inhalation.
तो इनहेलेशन के लिए क्या करना है, हमको चेस्ट कैविटी को बड़ा करना है। कैसे करेंगे चेस्ट कैविटी को बड़ा? डायफ्राम नीचे की तरफ जाएगा, दैट मीन्स डायफ्राम विल मूव डाउनवर्ड एंड रिब्स विल गो आउटवर्ड एंड अपवर्ड। अब इसका जस्ट उल्टा हमको करना है। इसका क्या करना है हमको? इसका जस्ट उल्टा करना है, एक्सहेलेशन करना है। क्या करना है हमको? एक्सहेलेशन करना है। तो एक्सहेलेशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, हमको चेस्ट कैविटी की साइज को बड़ा करना पड़ेगा कि छोटा करना पड़ेगा? हमारे पास देखो एक्सहेलेशन में क्या करना है कि जो एक्स्ट्रा एयर है उस एक्स्ट्रा एयर को बाहर करना है। तो किसी भी चीज को बाहर करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? चेस्ट कैविटी को छोटा करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ एक्सहेलेशन, एक्सहेलेशन। तो एक्सहेलेशन के लिए क्या करना है हमको? चेस्ट कैविटी की साइज को स्मॉल करना है। चेस्ट कैविटी के साइज को स्मॉल करना है। ठीक है, तो सपोज ये चेस्ट कैविटी है, ये हमारे पास चेस्ट कैविटी है। जस्ट अ सेकेंड, एक मिनट। ये हमारे पास चेस्ट कैविटी ऑलरेडी है। अब इसके साइज को हमको छोटा करना है। अच्छा, पहले ये चेस्ट कैविटी किससे बनी हुई? नीचे क्या है हमारा? मैं लिख रही हूँ डी, डायफ्राम। ठीक है, डी मीन्स डायफ्राम, ये आर मीन्स रिब्स, ये भी आर मतलब रिब्स, ये भी आर मतलब रिब्स। ठीक है, तो अब हमको इसकी साइज को छोटा करना है। तो क्या करेंगे हम लोग? डायफ्राम को कहाँ? नीचे की तरफ करेंगे कि ऊपर की तरफ? यस, डायफ्राम विल मूव अपवर्ड। डायफ्राम ऊपर आएगा और ये वाला रिब्स, जो साइड वाले रिब्स है वो अंदर की तरफ आएंगे। द रिब्स विल मूव इनवर्ड एंड ऊपर वाला रिब्स विल कम डाउनवर्ड। जैसे आए तो चेस्ट कैविटी का साइज क्या हो गया? स्मॉल। तो एक्सहेलेशन के दौरान में क्या होगा? डायफ्राम क्या होगा? डायफ्राम विल गो अपवर्ड। डायफ्राम क्या होगा? डायफ्राम विल मूव अपवर्ड। रिब्स क्या करेंगे? रिब्स विल गो इनवर्ड एंड डाउनवर्ड, जिसकी वजह से चेस्ट कैविटी छोटी हो जाएगी। और छोटी हो जाने की वजह से जो भी अब जगह कम है, जो भी एक्स्ट्रा एयर है, दैट एयर विल move out. This is how the process of exhalation will take place. So today we talked about how air will move inside, that is inhalation कैसे होगा, and how the CO2 will move out, exhalation कैसे होगा। ये दोनों के लिए हमको किसकी जरूरत पड़ती है? डायफ्राम और रिब्स के लिए। इनहेलेशन के केस में चेस्ट कैविटी की साइज को बड़ा करना है, एक्सहेलेशन के केस में चेस्ट कैविटी की साइज को छोटा करना है। अब आप ही देख लो कि कैसे हम लोग चेस्ट कैविटी को छोटा और बड़ा करेंगे। तो दिस इज हाउ वी विल द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग विल टेक प्लेस। थैंक यू।